So today we will discuss how to solve a numerical problem and then some examples we have to perform here. So first, how to solve numerical problems. So first of all, you must have confidence. आपको फिजिक्स से डरना नहीं है, किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से डरना नहीं है. And the theme is, if there is a problem, obviously there will be the solution. So you have to fight for the solution. तो पहला तो ये कि कैसे बनेगा, क्या बनेगा, इससे लेना देना नहीं. बनेगा मतलब बनेगा. Anyhow you have to. So some steps जिसको तुमको एक प्रॉपर सीक्वेंस में फॉलो करना है. So the step number first, you have to first understand the problem. So understand the problem by reading questions 2 to 3 times. So first you have to read the problem carefully, thoroughly, read between the lines. पहले उस प्रॉब्लम को 2 से 3 बार आपको पढ़ना है, समझना है कि वो एक्चुअली किस तरह का प्रॉब्लम है. देन यू हैव टू कैटेगराइज दैट प्रॉब्लम इनटू 2 पार्ट्स. वन इज द गिवन डाटा एंड व्हाट you have to find to calculate or find. So one thing here in the first part also, you have to read that problems very carefully 2 to 3 times and make a practice to draw a diagram for that particular problem. आपको उस प्रॉब्लम को डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करनी चाहिए. पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ उसमें डायग्राम ड्रा करते जाओ कि क्या कह रहा है, तो वो प्रॉब्लम जो है वो क्लियर कट समझ में आता है. तो ऐसा नहीं कि जस्ट सिर्फ लाइंस पढ़ते चले गए, सोचते गए, ऐसा नहीं. जस्ट मेक अ डायग्राम फ्रॉम दैट पार्टिकुलर प्रॉब्लम. तो उससे फिर तुमको ये 2 पार्ट पता चल जाएगा कि व्हाट डाटा और द पैरामीटर्स, फिजिकल पैरामीटर्स आर गिवन एंड व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट. एंड रिमेंबर दिस थर्ड पार्ट, check the given data are in same unit, either CGS or SI or MKS. So you have to check all the data are given in the same unit or not. If not, first convert all physical parameters in same unit, same system of unit. Generally prefer the SI systems. If the data is given in CGS system and the SI systems, different data are in different systems, then try to convert all those parameters in SI systems, your system of unit. So the given data must be now in the same unit. If it is not in the same system of unit, then you have to convert those data in the same system of unit. Then fourth one. Now the second part, what you have to calculate. So think about the formula for calculation of unknown parameter, unknown variables. Parameter, variables, physical quantities. You can write any of them. So that problem may be a direct formula based problem. आपने डाटा देख लिया, सेम यूनिट्स में कन्वर्ट कर लिया
उसके बाद ये चेक करिए कि जो आपको फाइंड करनी है उसके लिए डायरेक्टली में भी फार्मूला हो। अगर डायरेक्टली फार्मूला है देन देयर इज नो प्रॉब्लम, जस्ट पुट द वैल्यू, कैलकुलेट इट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड नहीं होता है। अगर डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम नहीं है तो उसके आसपास के फार्मूला फिर हमें सोचना पड़ता है, या फिर कुछ ऐसे एडिशनल पैरामीटर्स उसमें आते हैं जिसको फिर सॉल्व करना पड़ता है ना। सो इफ इट इज डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, write the formula, put the given value, put the given data and calculate. Problem solved. Write the answer with proper unit. This is 12 है ना? So now you can continue in this point number 4. So if directly it is formula based, then just you have to write the formula and put the data given and solve it. Fifth, maybe that unknown parameter, उसके लिए कोई direct formula ना हो, then you have to search if the problem is not direct formula based, then search some related derivations to get more known parameters therein. कभी कभी ऐसा होता है कि वो फार्मूला डायरेक्ट ना हो करके उसके बीच में कुछ ऐसे और वैल्यू होते हैं जिसके लिए हमें थोड़े आसपास के और फार्मूला तलाशने पड़ते हैं, है ना। सो यू हैव टू सर्च दैट रिलेटेड डेरिवेशन टू गेट मोर अननोन पैरामीटर्स। उसमें और कुछ ऐसे पैरामीटर्स हो सकते हैं जिसके लिए और हमें किसी सेकेंडरी फार्मूला की जरूरत पड़ती है, एंड देन वी कैन फॉलो दिस पॉइंट नंबर 4. And sixth one, very important, that is you have to write the final answer in proper unit. ड्यूरिंग कैलकुलेशन प्रिकॉशन, कभी कभी ऐसा होता है कि पैरामीटर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, डाटा बड़ा डाटा है, और कंडीशन ये है कि यू डोंट हैव कैलकुलेटर और यू आर नॉट एलोड टू यूज कैलकुलेटर। तो उस डाटा के कैलकुलेशन के लिए देन यू हैव टू यूज दैट राउंडिंग ऑफ मेथड एंड देन कैलकुलेट इट। सो राउंडिंग ऑफ मेथड में उसको इस तरह से राउंड करना चाहिए कि वो इजीली कैंसिल आउट हो सके, कैलकुलेट हो सके, है ना। तो इफ डाटा इज कॉम्प्लिकेटेड एंड लेंदी, if given data is have many figures or digits, you can write digits, then use method of rounding the digits to solve.
सो या उसको पावर के टर्म में लिखना, पावर के ऑर्डर के टर्म, पावर के टर्म में लिखना, राउंडिंग ऑफ करना, डाटा को छोटा करके, अगर बाय जो 5 to 7 डिजिट्स है, जस्ट कन्वर्ट दैट इनटू 2 or 3 डिजिट्स यूजिंग दैट सिग्निफिकेंट नंबर्स एंड दैट राउंडिंग ऑफ मेथड, और उसके बाद फिर उसको सॉल्व करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा लंबा चौड़ा डाटा दिख रहा है और तुम सारे को कैलकुलेट करते हुए बैठे हुए नो, है ना। तो पहला आपको प्रॉब्लम बहुत ध्यान से पढ़नी है 1 से 2 बार, और उसके लिए डायग्राम का हेल्प लेते हुए उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करना है, उसके प्रॉपर डायग्राम होना चाहिए। उसके बाद फिर उसमें कैटेगराइज करना है, व्हाट आर गिवन पैरामीटर्स, गिवन डाटा प्रॉपर यूनिट में है कि नहीं है। अगर प्रॉपर यूनिट में नहीं है तो यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू अ पर्टिकुलर यूनिट एज पर योर कन्वीनियंस। CGS यूनिट में भी लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, RSI यूनिट इज बेस्ट। एंड देन क्या फाइंड करनी है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। देन उसके बाद फिर जो फाइंड करनी है उसके लिए सोचे कि उसके लिए क्या डायरेक्ट फार्मूला है। अगर डायरेक्ट फार्मूला है और वो डायरेक्ट फार्मूला का डाटा वो अवेलेबल है, भाई हमने गिवन डाटा में देखा डायरेक्ट फार्मूला लिखा, अगर वो डाटा अवेलेबल है जस्ट वी हैव टू पुट एंड सॉल्व इट। वहाँ पर अगर कॉम्प्लिकेटेड डाटा आ गया, ऐसा बहुत सारे फिगर्स हो गए, तो उसको राउंड अप किया, राउंड अप करके उसको सॉल्व कर दिया, आंसर लिख दिए। आंसर लिखते समय भी प्रॉपर यूनिट का इस्तेमाल करनी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ना हो, तो फिर उसके आसपास के रिलेटेड डेरिवेटिव्स एंड फार्मूलास हमें सर्च करनी है, जो भी अननोन पैरामीटर्स उसको फाइंड करनी है, देन वी हैव टू सॉल्व। ओके, तो चलिए कुछ सिंपल सा कैलकुलेशन करते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि डाटा ना दे करके तुमको डेरिवेशन के फॉर्म में भी आउटपुट लाना पड़ सकता है, या डायरेक्ट फार्मूला यू हैव टू फाइंड। सो इफ इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम this is that total distance between point A and B, it is, let's say, S is given. So this distance is S. एक बॉडी है जो डिफरेंट पार्ट्स में इस A और B के बीच को कवर करता है in equal parts. Let's say initially from A to this x1, x2, x3, and the 2 different parts are there. So यहाँ से यहाँ तक आने के लिए let's say it is taking with initial velocity u1, x1 से x2 it is u2, and this is u3 and so on up to this un. u1 वेलोसिटी से ये t1 डिस्टेंस t1 टाइम तक ये ले रहा है, u2 डिस्टेंस तक ये t2 टाइम ले रहा है, एंड देन u3 डिस्टेंस वेलोसिटी से ये t3 टाइम। सो डिफरेंट इंटरवल स्टेप ऑफ टाइम पर वो डिफरेंट वेलोसिटी से वो बॉडी मूव कर रहा है। यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज। तो एक दो पार्टिकुलर पॉइंट्स है ए से बी के बीच के जो पॉइंट्स को एक बॉडी जो है वो एक व्हीकल कवर कर रहा है। कवर करने के लिए क्या है कि अलग अलग टाइम पर उसका वेलोसिटी की वैल्यू अलग अलग है। t1 टाइम पर u1 है, t2 टाइम पर u2 है, t3 टाइम पर u3 है, और इस तरह से डिफरेंट टाइम पर n को कवर करते हैं। हमें टोटल एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास टाइम दिया हुआ है, इनिशियल u1 एंड u2 वेलोसिटी दिया हुआ है, बट एवरेज स्पीड के लिए, एवरेज स्पीड के लिए जो फार्मूला हमारे पास है उस फार्मूला में क्या है, दैट एवरेज स्पीड इज कैलकुलेटेड एज एवरेज स्पीड, दिस इज कैलकुलेटेड एज एवरेज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ओके, सो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमें एवरेज डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए। सेकंड टोटल टाइम में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारे पास t1, t2, t3, t4 ऐसा दिया हुआ है, तो देन वी कैन राइट दैट दिस इज t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन, ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। बट एवरेज डिस्टेंस के लिए फिर हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर u1, u2, u3 ये वेलोसिटी दिया गया है दैट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो एवरेज डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक ये जो सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सिंपल जो हमारे पास फार्मूला होता है दैट डिस्टेंस इट इज इक्वल टू u मल्टीप्लाइड बाय t, सिंपल
लोअर क्लास में भी ये फार्मूला यूज किया जाता है, दैट डिस्टेंस इट इज इक्वल टू सॉरी वेलोसिटी स्पीड दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. This is the simple formula conventionally we are using. So this u1 is here, t1 is here, so we can calculate that s1 u1 it is equivalent to s1 by t1. So that s1 it is equivalent to u1 t1. तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया, दैट इज u1 t1. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वैसे u2 t2 हो जाएगा. वैसे सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट s2 it is equivalent to u2 t2, s3 that is equivalent to u3 t3, and s4 that is equivalent to u4 t4, and so on, and that is sn it is equivalent to un sn tn. प्रॉब्लम ये हमें पूछा गया था एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए, एवरेज डिस्टेंस चाहिए, गिवन टोटल टाइम चाहिए. टोटल टाइम में प्रॉब्लम नहीं, हमने टोटल टाइम लिख दिया, लेकिन एवरेज डिस्टेंस के लिए हमें फिर इस पर्टिकुलर सेगमेंट्स पे कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी. देन दैट कन्वेंशनल मेथड हमने यूज किया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये हर सेगमेंट के बीच हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया. बहुत सारी जगह में ये प्रॉब्लम आएगी. ओके, सो नाउ दैट एवरेज डिस्टेंस विल बी s1 plus s2 plus s3 and so on sn. s1 is equivalent to that is u1 t1 plus u2 t2 plus u3 t3 and so on un tn by t1 plus t2 plus t3. This is that average speed. कभी कभी ऐसा दिया जा सकता है कि ये सारे के सारे जो है वो आइडेंटिकल वेलोसिटी से कवर किया गया, u1 u2 u3 जो है वो उसने आइडेंटिकल लिख लिया. तो आइडेंटिकल लिख लिया तो फिर ये फिर सब के सब में जो है वो u कॉमन निकल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सो द टोटल u बाई टोटल टाइम आ जाएगा. आइडेंटिकल स्पीड से वो अलग अलग इसमें कवर करता है. या टाइम t1 t2 t3 को जो है वो आइडेंटिकल लिख लिया, हाँ, तो उस केस में ये जो है वो t के टर्म में आ जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा, दैट t के टर्म में अगर आ गया तो ये हो जाएगा तुम्हारा u1 प्लस u2 प्लस u3 ऐसा करके, है ना, एक t कॉमन निकल गया, और यहाँ पर भी सारे t को अगर हमने जोड़ लिया तो दैट विल बी n मल्टीप्लाइड बाई t हो गया. सारे t को जोड़ना पड़ेगा तो n मल्टीप्लाइड बाई t हो गया. n मल्टीप्लाइड बाई t होने से t कैंसिल हो गया, सो u1 प्लस u2 प्लस u3 बाई n हो गया. तो ये डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट प्रॉब्लम्स में तुम्हें इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, है ना. बस तुमको ये डिसाइड करनी है कि क्या लाना है और उसके लिए क्या कैलकुलेट करनी है. यहाँ पर अगर बाय द वे टाइम अलग अलग ना देकर, वेलोसिटी अलग अलग ना देकर के अलग अलग डिस्टेंस में ये अलग अलग टाइम ले रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करो. सिंपल सा s1 s2 s3 ऐसा लिख करके उसको t1 प्लस t2 प्लस t3 से तुम कैलकुलेट कर सकते हो. So in place of t1 let's say same problem, ये t1 t2 t3 नहीं किया. बोलिए s1 x1 डिस्टेंस को ये u1 वेलोसिटी से क्रॉस कर रहा है, x2 डिस्टेंस को ये u2 वेलोसिटी से क्रॉस कर रहा है, टाइम इज नॉट गिवन, एंड दिस u3 इसको x3 डिस्टेंस को u3 से क्रॉस कर रहा है. अलग अलग डिस्टेंस को अलग अलग वेलोसिटी से क्रॉस कर रहा है. तब क्या होगा, सेम फार्मूला भी है, दिस एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज डिस्टेंस अपॉन एवरेज टाइम. अब यहाँ पर एवरेज डिस्टेंस में तुम्हें ये x1 प्लस x2 प्लस x3 ये हम जोड़ सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ये हमने जोड़ दिया पूरा xn तक बाई, बट द टाइम इज नॉट गिवन. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम बाय यूजिंग द सेम similar conventional formula. So here the time will be, yes, so the time is equal to distance upon speed. So distance upon speed में ये टाइम के लिए फिर आपके पास हो जाएगा, that is let's say if the time is taken is t1, so this t1 it is equivalent to that distance is x1 by u1, t2 that is equivalent to x2 by u2, and t3 that is equivalent to x3 by u3, and so on up to tn that is x1 by u1. Okay, so this
T1 plus T2 plus T3, that is Tn. And now we will have this is equal to x1 plus x2 plus x3 plus x4 and so on by T1 is x1 by u1 plus x2 by u2 plus x3 by u3 xn by u2. This is the formula for that average velocity. तो स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन इसी तरह के सिंपल डेरिवेशन टाइप के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो सॉल्व कर सकते हो। तो इस यूनिट में एक अभी बचा हुआ है दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। सो रिलेटिव वेलोसिटी अपन नेक्स्ट कल के क्लास में करेंगे, लेकिन आज तुम लोग भैया बुक निकालो, 1 by 1 प्रॉब्लम। मैं हर बार कह रहा हूँ तुम लोग NCERT की बुक से प्रॉब्लम करते जाओ। उसमें मैंने देखा लगभग 35 से 40 प्रॉब्लम रहते हैं एक में, 35 to 40 प्रॉब्लम्स। उसको उसी सीक्वेंस में सॉल्व करते जाओ, तब जाकर के क्लियर होगा। बहुत टिपिकल प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड ट्राई टू सॉल्व। फार्मूला सिंपल सा है। अगर पहले हम यू हैव 3 to 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन, और उसी के बेसिस पर छोटे छोटे अल्फा बीटा गैमा के फॉर्म में भी, अननोन वेरिएबल्स के फॉर्म में प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो आपको आंसर भी उसी टर्म में लिखना है। हर बार ऐसा नहीं होता कि तुमको प्रॉब्लम जो है वो डिजिट्स के फॉर्म में दिया गया हो, वैल्यू के फॉर्म में दिया गया हो। कुछ वेरिएबल्स अल्फा बीटा गैमा के फॉर्म में, ABC के फॉर्म में भी दिया जा सकता है। तो तुम्हारे पास सॉल्व करने के बाद एक फार्मूला के बेस फॉर्म में आउटपुट आंसर आना चाहिए। जैसे ये सब यहाँ पर मैंने कुछ डाटा नहीं दिया, सिर्फ फार्मूला के बेसिस पर इसको ऐसा लिखा जा सकता है। जैसे तरह ये बननी चाहिए, और उस मैक्सिमम पर प्रॉब्लम तुमसे बन सकता है। ओके, सो स्टार्ट। माय ड्यूटी इज ओवर, योर वर्क स्टार्ट। चलिए शुरू हो जाओ, एक एक प्रॉब्लम करते जाओ। पहले नंबर प्रॉब्लम से सॉल्व चालू करो। जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा आगे बढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। फिर क्या है कि वो जस्ट पेंडिंग होता चला जाएगा।